आज हम रिवाइज करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. Voluntary renouncing tone, addiction, inability to read, usually caused by brain tension, especially word blindness, that means alexia. The expression of spoken sound by an alphabet, that is alphabetism, which can be approached, that is accessible. One who can attack first, that is aggressor. तो अग्रेसर और accessible इसकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, ये अक्सर इनकरेक्ट करने के लिए आती है. Allows paid to wife on legal separation, that's called alimony. And one who loves other, that is altruist. Altruist को हिंदी में हम बोलते हैं परोपकारी, right? Who does things for pleasure and not for money, that is amateur, right? Person representing a state, country in a foreign country, that is ambassador. One who can write either hand without any problem, that is ambidextrous. ठीक है, तो ambidextrous में आप याद रखो कि एम्बीडेक्स्ट्रियस को थोड़ा अलग करके लिखो तो एम्बी का रूट वर्ड होता है दोनों, ठीक है, बोथ. एम्बी मीन्स बोथ, और यहाँ पे लिखा है आइदर हैंड, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रियस. एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ और डिसऑर्डर, दैट इज एनार्ची. लॉस ऑफ मनी, दैट इज एमनेशिया. लॉस ऑफ फैमिली, दैट इज एमनेशिया. और मनी मेमोरी का जो मेमोरी का जो रूट वर्ड होता है इंग्लिश डिक्शनरी में वो होता है मनी, ठीक है. And which happens once a year, that is annual. Okay, deviation from common rule, that is anomaly. Medicine to save plants and animals from being rotten or decaying, that is antiseptic. Words which are opposite in meaning, that is antonym. And words which are similar in meaning, that is synonym, right? Loss of speech, that is aphasia. लॉस ऑफ स्पीच, दैट इज अफेसिया. ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि जहाँ पे ए और एन लगे ना, ये नेगेटिव सेंस को क्रिएट करता है. वेसल इन विच फिश एंड वाटर आर केप्ट, दैट इज एक्वेरियम. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोर और कंटेनर फॉर फिश, दैट इज एक्वेरियम, राइट. एंड स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज, दैट इज आर्कियोलॉजी. Okay, study of antiquities, that means archaeology. Government by rich people, that is aristocracy. Sound which can be heard, that is audible. One who tortures himself for good of soul, that is ascetic. One who doesn't believe in existence of God, that is atheist, right? Life history written by oneself, that is autobiography. Government by man, that is autocracy. Getting signature of some important person or handwriting, that means autograph, right? Life history of a person, that is biography. One who cannot pay debts, that is bankrupt. और bankrupt का synonym insolvent भी होता है. Happening every second year, that is biennially, right? और biennially और by का रूट वर्ड होता है टू, आपने याद रखना है, by का रूट वर्ड टू होता है. Animal having 2 feet, that is biped, right? और animal having 2 feet, that is biped. और इसमें quadruped भी आता है, right? अब है speaking disrespectfully about secret or religious thing, that is blasphemy, right? And study of plants, that is botany. One who fought fighting, that is bellicose. ठीक है, फाइटिंग का जो शौक रखते हैं उसे हम bellicose कहते हैं. वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, दैट इज बिब्लोफाइल. ठीक है, और लव का रूट वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में फाइल होता है और हेट का रूट वर्ड जो होता है वो मिस होता है. ठीक है, तो एनिमल हैविंग 2 feet, that is biped. State of being unmarried, that is bachelorhood. Which can be easily broken, that is breakable or fragile. Gold or silver before using for manufacturing ornaments, that is bullion. The art of beautiful handwriting, that is calligraphy. One who eats human flesh, that is cannibal. ठीक है, इस पे L missing हो गया, cannibal होगा, right? 100 year, that is century. An insect having 100 feet, that is centipede. 100 फीट जिसके तो 100 हो जाते हैं तो सेंचुरी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपने याद रखना है सेंचुरी यानी कि सेंटीपेड. एंड पर्सन वर्किंग इन द सेम ऑफिस, दैट इज कलीग. हु इजीली बिलीव अदर्स, दैट इज क्रेडुलस. और बिलीव का जो रूट होता है इंग्लिश डिक्शनरी में वो होता है क्रेडेंस. स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड, दैट इज स्क्रिप्टोलॉजी. ओके, विच कैन बी कर्ड, दैट इज क्यूरेबल, राइट. अ सिटीजन ऑफ वर्ड, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. अ लेटर whose writer is anonymous, that is dead letter. ठीक है, and one who cannot hear, that is deaf. One who cannot speak, that is dumb. An ambiguous speech, that's called duology, right? And a study of skin, that is dermatology. ठीक है, स्किन इशू होते हैं तो आप किसके पास जाते हो, हम बोलते हैं ना कि डर्मेटोलॉजी के पास. डर्मेटोलॉजी होती है जो स्टडी करते हैं, ठीक है, लेकिन डर्मेटिटिस्ट, ठीक है, डर्मेटिक्स, राइट, उसके पास जाना पड़ता है. दैट विच कैन बी डाइजेस्ट, दैट इज डाइजेस्टेबल. ठीक है,
डर्मेटोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास हमें जाना पड़ता है जब हमें स्किन इशू होता है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम आप आईजीएमसी भी जाओगे तो वहाँ पे दिखाते ही ये है डर्मेटोलॉजी वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ जाना है। एक्सट्रीमली ओल्ड एज वन बिहेव लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो लिखने वाले को बोलते हैं लॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो स्टडी करता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। एक्सट्रीमली ओल्ड एज व्हेन अ बिहेवियर लाइक अ चाइल्ड, दैट इज डोटेज, राइट। अ लर्निंग डिसऑर्डर डिस्टिंग्विश्ड बाय impaired ability to recognize or comprehend written words, that is dyslexia, that which can be divided, that is divisible. A game in which no party wins, that is draw. गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कैसे बना है, ठीक है। जब गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ पे हमारा क्रेसी यूज होता है, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में। लेकिन जब पीपल की बात आती है तो पीपल का रूटवर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में डेमो होता है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एल्कोहल, दैट इज डिप्सोमानिया। अब यहाँ से आप दोनों वर्ड को सेपरेट कर दो, डिप्सो को अलग कर दो, मानिया को अलग कर दो। मानिया मतलब होता है सनक और डिप्सो मतलब शराब, ठीक है। अब जिसको किताबों की सनक होगी तो उसे हम बोलते हैं, बुक्स को इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियो, ठीक है, यानी कि बिब्लियोमानिया, ठीक है। जिसको चोरी करने की सनक होगी दैट इज क्लेप्टोमानिया, चोरी को हम बोलते हैं क्लेप्टो, ठीक है। एंड मानिया मतलब होती है सनक, ठीक है। बोलने की सनक होगी तो लोगोमानिया हो जाएगा। महान बनने की सनक है दैट इज मेगलोमानिया। वन हु इज फिट फॉर द पोस्ट दैट इज एलिजिबल। वन हु इज एम्प्लॉयड दैट इज एम्प्लॉय। वन हु एम्प्लॉयज दैट इज एम्प्लॉयर। अ थिंग फिट टू ईट दैट इज एडिबल। स्टडी फॉर द इंसेक्ट्स दैट इज एंटोमोलॉजी। A long narrative poem that is epic. A good and normal states of health that is Eurasia. A disease that spread everywhere that is epidemic. A speech without previous preparation that is extempore, right? साइंस डील विद फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब साइंस फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जब साइंस के फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की बात आएगी तो आपने एटिमोलॉजी कर देना है, ठीक है। वन हु इज हार्ड टू प्लीज दैट इज फेस्टिडियस, राइट। वन हु इज ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करेगी ऑब्वियसली बात है फेमिनिस्ट होगी, राइट। एंड चाइल्ड बॉट बाय पेरेंट्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, ठीक है। जो पेरेंट्स अनाथाश्रम में जाते हैं वहाँ से बच्चों को बाय करते हैं, बॉट करते हैं, ब्रॉट करते हैं, उन्हें लेते हैं वहाँ से, तो उन पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉस्टर चाइल्ड, ठीक है। और कई ब्रॉट भी नहीं करते, कई रिश्तेदारी में भी ले लेते हैं आजकल, है ना। एक्स्ट्रा एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन दैट इज फैनेटिक, ठीक है। एंड कोई भी आजकल कोई भी अपने रिलीजन के लिए फैनेटिक आजकल लोग हो रहे हैं ना। मर्डर ऑफ ब्रदर दैट इज फ्रैट्रिसाइड। अब ब्रदर का मर्डर करेंगे ना तो फ्रैट्रिसाइड आएगा, लेकिन अगर मर्डर ऑफ पेरेंट्स होता तो आ जाएगा पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर होता तो आता पैरिसाइड, ठीक है। तो फादर से याद रखना है प से पिता, प से पैरिसाइड। पेरेंट से याद रखना है पैट्रिसाइड आ जाएगा। अगर मर्डर ऑफ आता है आपका, मर्डर ऑफ सिस्टर आता है तो सोरोसाइड आ जाएगा, ठीक है। और भी इसमें कई चीजें आती है, ठीक है। फ्रेंड की बात आएगी तो, ब्रदर की बात आएगी तो फ्रेंड्स की तरह समझ लेना, यानी कि फ्रैट्रिसाइड है, ठीक है। विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, अब जर्म्स को जो डिस्ट्रॉय करेगा वो जर्मिसाइड होगा, ठीक है। साइड का रूट वर्ड क्या होता है, जर्मिसाइड है ना, तो साइड का रूट वर्ड होता है सुसाइड, किलिंग। साइड मतलब किलिंग, सुसाइड नहीं होता, साइड का मतलब होता है किलिंग। साइड से सुसाइड मत सोचना, ठीक है। साइड का मतलब होता है किलिंग, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय आया है तो डिस्ट्रॉय का रूट वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, किलिंग। वन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग दैट इज ग्लटन। स्टडी ऑफ अर्थ दैट इज जूलॉजी। अ शेड फॉर मोटर कार, मोटर कार के लिए जो शेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैराज। क्या कहते हैं, गैराज, राइट। एनिमल लिव्स ऑन हर्ब्स, जो एनिमल हर्ब्स के ऊपर डिपेंड होते हैं दैट्स कॉल्ड हर्बिवोरस, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। व्हीकल टू कैरी डेड एनिमल्स दैट इज हर्स, राइट। मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट इज होमिसाइड, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग, जो यहाँ से ह्यूमन बीइंग आता है ना, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उससे हमारा इंग्लिश का वर्ड बनेगा। स्टडी ऑफ टिश्यू दैट इज हिस्टोलॉजी, ठीक है। अ फियर ऑफ फ्रॉम वाटर दैट इज हाइड्रोफोबिया।